हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ऑल आर गुड ना? ओके, गुड ही होना चाहिए। और वैसे भी आप सब ने अपने आप को सेफ रखना है, प्रॉपर हाइजीन रखना है। और हर एक एक घंटे के बाद आप लोगों ने हैंड वॉश जरूर करना है और 20 सेकंड के लिए हैंड वॉश करना है। क्लियर? करें अब अपने आप नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज staffing. Yes, we have done earlier the two topics, that is the planning and organizing. These are the two important functions of management. Now today we are discussing about the third important function of management, that is the staffing. Clear? Under organizational structure we have studied that various posts are created. Clear? Various posts are created to achieve the objectives of the enterprise. बट क्या होता है इस केस में? वाइल दीज पोस्ट कम अलाइव व्हेन दीज पोस्ट आर फिल्ड विद द कॉम्पिटेंट पर्सन्स. इन अदर वर्ड्स हम क्या कहेंगे कि ऑल द पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन आर मीनिंगलेस अनलेस दे आर फिल्ड या दे आर स्टाफ्ड बाय द कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स. द टू फंक्शंस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. अगर हम प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, if there is any mistake in planning and organizing, that cannot be as harmful as if there is any mistake in the staffing, that will be more harmful than planning and organizing. Clear? Because a wrong appointment can vitiate the atmosphere, whole atmosphere of the enterprise. अगर एक रॉन्ग अपॉइंटमेंट हो जाती है ना, तो वो सारे के सारे एंटरप्राइज का एटमॉस्फेयर जो है वो खराब कर देती है. सो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, देन उसे हम फिर भी, वो हमारा पेपर वर्क है, उससे हम फिर भी कुछ हद तक जो है कंट्रोल में ला सकते हैं. लेकिन अगर एक रॉन्ग अपॉइंटमेंट हो जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, देन वो रॉन्ग अपॉइंटमेंट जो है पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर, पूरे के पूरे एंटरप्राइज का एटमॉस्फेयर जो है वो विशिएट कर सकती है. क्लियर? द स्टाफिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. यस, व्हाट इज स्टाफिंग? It means appointing competent persons according to the importance of the post in the organization. It means more capable persons are appointed on the most important post, and less competent person and comparatively less competent persons can be appointed on the less important post. In other words, और हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? All the functions undertaken to establish coordination between the post and the individuals come under staffing. Means क्या है? स्टाफिंग में हम एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं. किसमें? फंक्शंस में. फंक्शंस जो पोस्ट है क्रिएट की गई है, क्लियर, उस पोस्ट के लिए हम जो पर्सन अपॉइंट करने जा रहे हैं, तो फंक्शंस का और उस पर्सन का पोस्ट का आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. क्लियर? देन दिस इज द स्टाफिंग. मींस स्टाफिंग क्या होती है? Appointment of competent person according to the importance of the post. Means more competent persons will be appointed on the most important post, comparatively less competent persons will be appointed in the less important post, या जो भी कम important post होती है. Next is the features. What are the features of staffing? Yes, अब स्टाफिंग हमने बहुत अच्छे से कर लिया ये कि स्टाफिंग क्या होती है? अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्संस in the organization according to the value, according to the importance of the post. Clear? अब features क्या? First of all, related to the human beings. Yes, staffing is related to the human beings because in the organization various posts are created, and on these posts only human beings can be appointed. Clear? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किससे चलेगी? सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 4 M's होते हैं: मैन, मशीन, मनी एंड मटेरियल. अब ये इन तीनों को चलाने वाला कौन है? मैन. क्लियर? सो स्टाफिंग इज रिलेटेड विद द ह्यूमन बीइंग्स. नेक्स्ट इज द सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन. यस, it is a separate managerial function. How it is a separate managerial function? Because separate managerial function means that far from being a major part of some function, it is in itself a major function. Yes, listen it very carefully.
far from being a major part of some functions, it is in itself a major function. Next is essential at all managerial levels. Yes, staffing is needed at all the managerial levels, whether that is the top level managers, top management, middle level management and the lower level management. Staffing is needed at all managerial levels, because ह्यूमन बींग्स के अपॉइंटमेंट सिर्फ ये तो नहीं है ना कि हमने टॉप लेवल पे करनी है, मिडिल लेवल पे भी उसकी नीड होती है और लोअर लेवल पे भी नीड होती है, किसकी, पर्सनल्स की. नेक्स्ट इज द related to social responsibility. Yes, because staffing is related with the human beings and human beings are related to the, because human beings are a social animal, so staffing is related to the social responsibility. staffing इससे related है human being से, और human being कौन है, social animal है. clear? then staffing is automatically related to the social responsibility. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट मींस, यहाँ पे अगर हम इन नटशेल क्या करेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा, रिलेटेड टू द सोशल रिस्पांसिबिलिटी. जब हम स्टाफिंग करते हैं ना तो वो ह्यूमन बीइंग की जाती है. तो ह्यूमन बीइंग की करने का मतलब क्या है कि हम सोसाइटी के टुवर्ड्स अब एक तरह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी फुलफिल कर रहे होते हैं. इफेक्ट ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. यस, स्टाफिंग इज has an effect on internal and external environment. Internal environment is related to the policies and procedures of the business. Internal environment जो है, और external हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड है एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो जाता है, मतलब जो हमारा आउटर इन्वायरमेंट है. क्लियर? तो स्टाफिंग का ये सब फीचर्स है. All these are the features of staffing. These are the features of staffing. Next is the need and importance of staffing. Yes, staffing की need क्यों पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में? Because there is no any organization which can run without the human being. So there is need of staffing, means personnel in the organization. Next importance क्या है staffing की? means जब हम competent persons की अपॉइंटमेंट करने लगते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो स्टाफिंग की उस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट इज द ऑब्टेन द कॉम्पिटेंट पर्सनल. यस, फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज ऑब्टेन द कॉम्पिटेंट पर्सनल. इसका एक एग्जांपल आप अपने स्कूल से लीजिए. सपोज आपके प्रिंसिपल को आपके स्कूल में उन्होंने देखा कि स्कूल में मैथ्स डिपार्टमेंट में भी एक टीचर की नीड है, ठीक है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में भी एक टीचर की नीड है, एंड सपोज कॉमर्स में भी एक टीचर की नीड है, सपोज के बिजनेस स्टडीज के टीचर की नीड है. तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ऑब्टेन द कॉम्पिटेंट पर्सनल. हमें जब हमारी नीड अराइज होती है ना, उसके बाद हम उस नीड को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट मेजर्स को यूज करते हैं. हाउ वी कैन ऑब्टेन द कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. समझ में आ गई? इनके रिक्रूटमेंट करना, फर्स्ट स्टेप तो हम रिक्रूटमेंट से उठाएंगे. तो हम सबसे पहले हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अराइज करेंगे नीड, मींस हम पहले ये देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बीइंग्स की, कॉम्पिटेंट पर्सनल की नीड है या नहीं है, मतलब ऑब्टेन करते हैं पहले हम. नेक्स्ट इज द हाई परफॉर्मेंस. यस, व्हाट इज द हाई परफॉर्मेंस? हाई परफॉर्मेंस का मीनिंग है यहाँ पे कि राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब. हाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब. जब राइट पर्सन राइट जॉब पे होगा मींस क्या होगा, ऑटोमेटिकली हाई परफॉर्मेंस मींस अच्छी जो परफॉर्मेंस जो है वो सामने आती है. क्लियर? नेक्स्ट इज द कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ. यस, कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग में? अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल और ग्रोथ चाहिए तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखते रहेंगे कि जो स्टाफिंग जो अपॉइंटमेंट हो चुकी है क्या वो कॉम्पिटेंट पर्सन्स की हुई है या इनकॉम्पिटेंट पर्सन्स की हुई है. अगर तो कॉम्पिटेंट पर्सन्स की हुई है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और ग्रोथ के चांस जो है वो रेगुलर हो जाएंगे. अगर अभी मैंने इसकी इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर एक रॉन्ग अपॉइंटमेंट कैन विशिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ द एंटरप्राइज. सो रॉन्ग अपॉइंटमेंट जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे क्या लगा देती है, फुल स्टॉप, और वो भी बड़े वाला. नेक्स्ट इज द optimum utilization of human resources. Yes, how optimum utilization of human resources? Under staffing we appoint the competent personnel in the organization and that competent personnel will
ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेज मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे होगा, जब हम उनकी कॉम्पिटेंसी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। क्लियर, उनकी स्किल्स को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट इज द इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। यस, इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है? मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर उनका मोरल बूस्टअप होता है, और मोरल कब बूस्टअप होगा? जब अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेंस दे विल अपॉइंट ऑन दैट पोस्ट। सपोज एक बहुत अच्छा हाई क्वालिफाइड पर्सन है, उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा है, और उसे हम लोअर लेवल पे अपॉइंट कर देते हैं, तो उसका मोरल क्या होगा? बूस्टअप होने की बजाय डाउन हो जाता है, मोरल उसका डाउन हो जाएगा। तो इंप्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन कब इंप्रूव होता है, मोरल कब बूस्टअप होता है? जब अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेंसी, अकॉर्डिंग टू द स्किल, अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी, दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड टू दैट पोस्ट। क्लियर, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। क्लियर, आई थिंक सारे के सारे पॉइंट सब क्लियर हो गए होंगे सबको। नेक्स्ट इज द टॉपिक इज योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज इट्स नेम सजेस्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज आर द कॉम्पिटेंट पर्संस, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, इनकी मैनेजमेंट करना। मींस ह्यूमन रिसोर्सेज में हम क्या लेते हैं? राइट पर्संस ऑन द राइट जॉब। दिस इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना मींस राइट पर्सन को राइट जॉब पे प्लेसमेंट देना। HRM is that branch of management which is concerned with the recruitment, selection, development and optimum use of employees. Optimum use of employees का मतलब क्या है? कि उनका पूरा यूज करना मींस कहने का उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उन्हें पोस्ट देंगे तो उनकी स्किल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। दिस इज द ऑप्टिमम यूज ऑफ एम्प्लॉइज। इनके एक्सप्लॉयटेशन ना करना। क्लियर, ये ना हो कि उनका मोरल बूस्टअप करने की बजाय उन्हें ऐसा लोअर लेवल पे पोस्ट दे देना कि वो क्या करें, मतलब एक तरह से ये सोचे कि हम जॉब कहीं ना कहीं से किसी तरीके से छोड़ के चले जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो HRM is that branch of management which is concerned with the recruitment, selection and development and the optimum use of employees. HRM ensures that every employee make his maximum contribution in the achievement of business goals. HRM एश्योर करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये एश्योर करता है कि हर एक पर्सन जो है, हर एक एम्प्लॉय अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन, अपने पूरे के पूरे एफर्ट्स डालेगा किसमें? फॉर द अचीवमेंट ऑफ द बिजनेस गोल्स। द HR मैनेजर आल्सो परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन। ये स्टाफिंग फंक्शन भी परफॉर्म करता है HR मैनेजर। मींस राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। एज आई हैव टोल्ड यू, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि HRM का मेन मोटिव क्या है? राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। और कौन कौन से फंक्शंस करता है, किससे कंसर्न है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। क्लियर, व्हाट इज द HRM? नाउ जो HRM है वो परफॉर्म करता है मैनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज which the human resource personnel must perform। जो कि human resource personnel का मीनिंग है जो human resources की अपॉइंटमेंट करते हैं, तो उन्हें भी ये ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। तो वो ड्यूटीज कौन कौन सी है? फर्स्ट इज द रिक्रूटमेंट, दैट इज यू सर्च फॉर क्वालिफाइड पीपल। पहले तो रिक्रूटमेंट करता है। रिक्रूटमेंट क्या होती है? एक सर्चिंग होती है, सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसे ही नहीं सर्चिंग होती है, क्वालिफाइड एम्प्लॉइज की होती है, पीपल की होती है। नेक्स्ट, फर्स्ट इज द रिक्रूटमेंट हो गया। सेकंड इज द एनालाइजिंग जॉब, जॉब को एनालाइज करना। देन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। अब HRM डिपार्टमेंट सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो पहले वो रिक्रूटमेंट देखेगा, इनके सर्च करेगा कि कितने मतलब क्वालिफाइड पीपल की। उसके बाद एनालाइज करेगा जॉब्स को। जॉब को एनालाइज करना भी किस टाइप की जॉब है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब्स टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएगा, पूरा का पूरा एक विवरण बनाता है कि किस टाइप की जॉब्स के लिए किस टाइप के कॉम्पिटेंट पर्संस की जरूरत है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो। नेक्स्ट, डेवलपिंग कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। अब जब अपॉइंटमेंट होगी तो अपॉइंटमेंट के बाद कॉम्पनसेशन और इंसेंटिव प्लान्स भी वो डेवलप कर देता है कि कल को अगर अपॉइंटमेंट होती है तो ऑब्वियसली जो ह्यूमन बीइंग्स आएंगे तो उन्हें ये प्लान्स जो हैं हमें देने हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यस,
ट्रेनिंग इज द ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ HRM, क्योंकि कोई भी चाहे वो कॉम्पिटेंट पर्सन, जितना भी कॉम्पिटेंट पर्सन क्यों ना हो, बट प्रैक्टिकल नॉलेज इज मस्ट। तो टाइम टू टाइम हमें क्या करना होता है, उसे ट्रेनिंग देनी होती है। ट्रेनिंग देने का मतलब क्या, उसकी कॉम्पिटेंस को और ज्यादा इंप्रूव करना होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड करियर ग्रोथ। नेक्स्ट, हैंडलिंग ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट्स। अब ये ट्रेनिंग तो दे दी, इससे डेवलपमेंट भी हो जाएगी। उसके बाद ग्रीवियंसेस, शिकायतें तो आती ही आती है ना, उन्हें हैंडल करना, कैसे हैंडल करेंगे ग्रीवियंसेस को और कंप्लेंट्स को। नेक्स्ट, मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस। मेंटेन करना लेबर और यूनियन बनी होती है ना, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस और लेबर रिलेशंस को मेंटेन करना। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी, ह्यूमन बीइंग्स को, एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सोशल सिक्योरिटी कैसे, अगर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा, उन्हें सैलरी स्केल अच्छा मिल रहा है, ट्रेनिंग पे वो प्रॉपर जा रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, तो ऑब्वियसली क्या है, सोशल सिक्योरिटी उन्हें मिल रही है। डिफेंडिंग द कंपनी फ्रॉम लीगल सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस। यस, डिफेंड करना कंपनी को लीगल सूट्स, यानी कि कंपनी को HRM का ये कि किससे रिलेटेड है, वो एम्प्लॉइज से। और ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट भी एम्प्लॉइज की वजह से ही होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिना एम्प्लॉइज के चल नहीं सकती, और एम्प्लॉइज ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वो कैसे क्रिएट करते हैं, अपने डिमांड्स को लेके। तो HRM जो है कंपनी को लीगल सूट्स यानी कि केसेस से, कोई एम्प्लॉई या कोई भी अगर पर्सन कोई केस कर देता है ना, तो ये इसका भी डिफेंड करने का काम करती है HRM। तो कंपनी को इन सब चीजों से, इन सभी प्रॉब्लम से जो है वो दूर रखती है, एंड अवॉइड द लीगल कॉम्प्लिकेशंस, और इसलिए कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आने ही नहीं देती, अवॉइड करवाती है ये ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर? तो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर? एक छोटा सा टॉपिक है ये आपकी बुक में, वैसे सारा का सारा चैप्टर जो स्टाफिंग से रिलेटेड है, बट स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अपना रोल है, क्योंकि राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, ये कौन अवेल कराता है, HRM कराता है। और HRM का और फंक्शंस क्या है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर? और उस पर आपकी ड्यूटीज दे दी गई है HRM की, क्या क्या ड्यूटीज है। उसके बाद बात होती है